السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ناظرین کا ایک بار پھر سے میں اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن جانکاری پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو سی ٹیٹ کے اوپر یہ ویڈیو نمبر 2 ہے۔ سی ٹیٹ کے جو اردو پیڈاگوجی ہے اس پر جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کو اب برقرار اور آج کا جو ٹاپک ہے حصہ دوم زبان کے نشو و نما کا جو بھی سوالات ہیں آموزش اور کرائے جائیں گے۔ اس سے آج کا متعلق جو سوال ہے اردو پیڈاگوجی حصہ 2 15 ایسے مردی زبان کے سوالات نشو و کرائے نما کا جائیں گے علم تدریس ان کے جوابات جو یہ گزشتہ کئی برسوں حصہ 2 پر مبنی ہے۔ اس میں جو فرسٹ نمبر ہے آموزش اور اکتساب، ہم اس روزانہ سے 15 متعلق کوشچن کا 15 سوال ایسے معروضی سوالات کے جوابات ترتیب ہے کرائے جائیں گے جو سلیبس کا گزشتہ اسی کے کئی اکارڈنگ برسوں میں آموزش سی ٹیٹ اور اکتساب امتحان میں آج کا پوچھا گیا ٹاپک ہے اور اسی کے حساب سے یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ آپ سوالات کے جوابات کی پریکٹس کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرائیں گے۔ تیاری اس سے آپ کی تیاری میں کامیابی ضرور ملے گی۔ اور 15 جو پیڈاگوجی کا 15 نمبر ہے تو اس میں آپ سے بنے رہیں، دیکھتے رہیں، لائک اور 14 یا سبسکرائب 13 نہیں نمبر کیا تو لائک ضرور کر دیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، مشق کے ذریعے سے لا سکتے ہیں۔ چلیے آج کا پہلا سوال ہے، استاد ایک ایسا ماحول فراہم کرے جہاں طلبہ سکھائی جانے والی زبان بلا جھجھک بول سکے اور اس کے عادی ہو سکے۔ اس کے لیے ایسا ماحول فراہم یہ سوال ہے۔ آپشن ہے بصری مواد استعمال کیا جائے، بی ہے طلبہ کو کوئی بھی زبان بولنے دیا جائے جو وہ اچھی طرح جانتے ہو، سی ہے کلاس روم میں عام بات چیت کے دوران جملے کے استعمال پر زور دیا جائے، یا ڈی ہے وقفے سے تحریر اور بولنے کا کام دیا جائے۔ یہ چار آپشن ہیں، آپ اس کو غور کریں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے تو آپ اس کے جواب کو پکڑ سکتے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے جو طلبہ کو سکھائی جانے والی زبان میں بلا جھجھک بول سکیں گے۔ صحیح اور سٹیک جواب ہے وقفے سے تحریر اور بولنے کا کام دیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا، طلبہ کے اندر جو جھجھک ہے وہ بول سکیں گے، بے جھجک بلا جھجک جو ہے وہ ختم ہو سکے گی۔ سوال نمبر 2 ہے ہر زبان میں کچھ مخصوص آوازیں اس خصوصیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبان کیا ہے۔ اس خصوصیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبان آپشن اے مہارت درکار ہوتی ہے، یا پھر الٹپ ہے، اسکل سبجیکٹ، یا پھر آپشن بی ہے مخصوص خصوصیت والی، کہ مطلب یا ہر سی ہے زبان میں الٹپ، یا ڈی ہے صاف اور نظام۔ لفظیات ہوتی ہے۔ اس خصوصیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبان ان چاروں میں سے وہ کیا چیز ہے جو ہوتی ہے۔ تو جی ہاں، آپشن سی الٹپ ہے۔ الٹپ کہتے ہیں خیالی ہے، تو آپشن سی مطلب صحیح جواب ہوگا سوال نمبر 2 کا۔ سوال نمبر 3 ہے مختلف مضامین کی آموزش میں طالب علم کی مادری زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسری زبان کی آموزش میں مخل ہونا، اور بی ہے بہتر آموزش میں معاون ہوگا، سی ہے انگریزی زبان کے کلاس روم میں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور ڈی ہے دوسری زبان اور مضامین کی آموزش میں رکاوٹ کے طور پر کام کرے گا۔ تو نیگیٹو جو پہلو ہے اس کو تو سی ٹیٹ کے جو پیڈاگوجی اس میں تو اس کو ختم ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں گے پہلا جو ہے مخل ہوگا، یہ بھی نیگیٹو پہلو ہے۔ سی کو بھی دیکھیں گے، اس میں بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی نیگیٹو ہے۔ لیکن آپ بی کو دیکھیں گے، بہتر آموزش میں معاون ہوگا، یہ صحیح جواب ہوگا۔ تو سی ٹیٹ کا جو نیگیٹو پہلو ہے تو وہ اس کا صحیح جواب نہیں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے زبان کی آموزش میں مؤثر ہوتی ہے جب آموزگار کا آپ یاد رکھیں گے، آموزگار معلم کو کہتے ہیں کہ زبان کی جو آموزش ہے اس میں مؤثر کیا ہوتی ہے۔ آموزگار کے اعتبار سے حیثیت سے استعمال پر آتا ہے، یا پھر ترتیب وار قواعد کے اصول سیکھتا ہے، یا پھر سختی سے حیت پر آتا ہے، یا پھر اصول سے اطلاق پر آتا ہے۔ ان چاروں میں سے آپ صحیح جواب بتائیں گے۔ تو صحیح جواب اگر صحیح سے کریں گے تو سوال نمبر آپشن اے کو دیکھیں گے، پہلے حیت پھر استعمال۔ حیت سے کیا ہوتا ہے، استعمال پر آتا ہے۔ زبان کی آموزش میں مؤثر جب ہوتی ہے تب حیت سے استعمال پر آتا ہے، اس وقت زبان کیا ہوتی ہے، آموزش میں مؤثر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشو و نما سے مراد ہے۔ جو زبان سیکھی جاتی ہے اس کے تعلق سے لغوی نشو و نما، لیکسول ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ آپشن ہے زبان سیکھنے کی ترغیب سے، آپشن بھی ہے قواعد سیکھنے کے ایک مرحلے سے، سی ہے سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے، یا پھر ڈی ہے نحوی ساخت کی تقسیم سے۔ تو صحیح جواب ہوگا آپشن سی سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے زبان کی کیا نام ہے لغوی
नशो नमा मुराद है। सवाल नंबर 6 है, ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल है। यहाँ पे देखेंगे कौन सबसे अहमियत का हामिल पूछा है ज़बान की आमोजिश में। ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है क़वाइद के मशक़ों का बग़ैर मशक़ करना। सी है किसी ज़बान में अखबारात का मुताला। डी है किताबों का मुताला। यानी ज़बान की आमोजिश में जो सबसे कम अहमियत का हामिल है वो क्या है, तो गौर करेंगे तो इसमें से बी यानी क़वाइद की मशक़ों का बग़ैर मशक़ करना, ये सबसे कम ज़बान के आमोजिश में अहमियत के हामिल है। साथ है स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। इस बयान से वाज़ह होता है कि, अब ऑप्शन है, बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़बान पढ़ना चाहिए, या फिर बी है बच्चों को एक ज़बान सीख रहे हैं, या सी है पढ़ाते वक्त क्लास रूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए, डी है बच्चों के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। 4 ऑप्शन है, तो डी वाला तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बच्चों के पास तमाम मालूमात होती है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल गलत। आप अगर ए को देखेंगे बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़बान पढ़ना चाहिए, अरे अभी बच्चा है तो मेयारी ज़बान पढ़ नहीं सकता, तो ये भी कट जाएगा। बी है बच्चे एक ज़बान सीख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। आप अगर सी को गौर करेंगे कि पढ़ाते वक्त क्लास रूम में क्या है, बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए, इससे क्या हुआ, बच्चों को समझने में काफ़ी क्या होगी, ज़बान की काफ़ी सलाहियत होगी और काफ़ी उसके अंदर सीखने की समझने की इस्तात होगी। समझ जाएंगे। सवाल नंबर 8 है, पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब होता है। पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब होता है, आमोजिश का मतलब है, ऑप्शन ए एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल कर दें और जिससे उनको तजर्बात ज़ाहिर हों। बी है मेहनती निसाब कौमी इल्मी निसाब की तरह होता है, या सी है एक थ्योरी एक इस्लाह ज़बान सीखने का नज़रिया, या डी है महारतों का तजर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन याद करना। तो पूछताछ पर मबनी आमोजिश क्या है? पूछताछ, अगर आप पूछताछ को देखेंगे तो इस सवाल अगर आप क्या नाम है गौर करेंगे तो ऑप्शन ए को आप गौर करेंगे। देखिए, एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन एक दूसरे की मदद से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजर्बात क्या हो, ज़ाहिर हो। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन ए सही होगा। पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब है क्या है? एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजर्बात। सवाल नंबर 9 है, उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालात वो है जहाँ एक, यहाँ पे बताया कि उर्दू ज़बान की महारत जो है उसको हासिल करने के लिए वो कौन से हालात है जो नामुवाफिक हालत हो सकती है। ऑप्शन है उर्दू तक तलबा की रसाई का ना होना, बी है घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जा सकती और बोली जाती, सी है क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत, तो डी है हिंदी मादी ज़बान राब्ते की ज़बान है। तो इसमें नामुवाफिक हालत वो है जहाँ एक क्या है, क्लास रूम में, जी हाँ इसका सही होगा, क्लास रूम उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो, यानी वो क्लास उर्दू ज़बान अगर महारत हासिल करनी है, अगर क्लास में उर्दू ज़बान की महारत ना हो तो वो नामुवाफिक हालत कही जा सकती है। 10 है, कौन सा आमोजिश का इलाका है गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है? कौन सा आमोजिश का इलाका जो गौर व फिक्र को, समझ, याद करना, अंदाज़े कद्र या फिर इतलाक़, इन चारों में से वो कौन सा है जो गौर व फिक्र को अमल को बढ़ाता है? तो जी हाँ इसका सही है इतलाक़ से ही आदमी के आमोजिश का गौर व फिक्र का जो अमल है वो बढ़ता है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन डी सही जवाब है। 11 है, ज़बान की तहसील। अब है ज़बान की तहसील, ऑप्शन है ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्ज़िया शामिल है, यानी ज़बान की तहसील इसे कहते हैं, या फिर भी है इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल, या सी है ये एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़बान सीखने का माहौल पैदा करता है, या डी है ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरे का इस्तेमाल और उनके याद करना शामिल है। तो ज़बान की तहसील इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा जो ज़बान की तहसील जो सवाल है उसको कंप्लीट कर ले?
मुकम्मल करें ज़बान की तहसील किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, आप गौर करें कि ज़बान की तहसील वो कौन सी चीज़ होगी। चारों ऑप्शन को आप पढ़ें, बार बार देखें कि कौन सा सटीक इसका सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन ए को देखेंगे, ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना, उनका तज्जिया शामिल है, ये बिल्कुल नहीं। जी हाँ, इसका अगर आप बी देखेंगे कि इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल ज़बान की तहसील कहलाता है। अब सवाल नंबर 12, ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है, यानी ज़बान की जो आमोजिश होती है वो कौन सा दौर होता है जो एक नाजुक वक्त कहलाता है। ऑप्शन है क्लास में तफहीम की जांच से पहले का वक्त, ऑप्शन बी किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त, सी है एक ख़ास वक्त जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं, या डी जिस वक्त ज़बान किसी दूसरी दौर के मुकाबले में जल्दी सीखी जा सकती है। यह सवाल बिल्कुल आसान, अगर सही से अगर गौर करेंगे तो इस सवाल का आसानी से हल कर सकते हैं कि ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त कौन सा होता है, यानी इन चारों में से वो कौन सा ऐसा जवाब है जो नाजुक वक्त ज़बान की आमोजिश के लिए हो सकता है, नाजुक दौर। तो सही बात होगा कि एक ख़ास वक्त, ऑप्शन सी, जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाए वो ज़बान की आमोजिश के लिए एक नाजुक वक्त कहलाता है, यानी वो दौर जो है दरमियान नाजुक वक्त कहलाता है। सवाल नंबर 13, ज़बान जानने का मतलब है। नॉर्मली सवाल है कि ज़बान जानने का मतलब क्या है, ज़बान के क़वाइद को जानना, या फिर ज़बान में इज़हार ख़याल की सलाहियत रखना, या सी है ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म, या डी है सही से लिखना। तो ज़बान जानने का मतलब एक सवाल सिंपल सा आ जाता है और आमतौर से कहते हैं क्या ज़बान जानते हो, तो इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब आप देखेंगे, ज़बान के क़वाइद को जानना बिल्कुल नहीं, या फिर ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म बिल्कुल नहीं, या डी सही से लिखना ये भी नहीं। आप अगर बी को देखेंगे, यानी ज़बान जानने का मतलब होता है ज़बान में इज़हार ख़याल की सलाहियत रखना, ये असल जवाब होगा ज़बान जानने का मतलब का। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 14 है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है, यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है, ये सवाल किया गया। ऑप्शन ए उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, या बी तलबा अपने आप पूछताछ करता है, या सी ऊपर के दोनों यानी ए और बी, या फिर है डी सिर्फ डी का ऑप्शन है सिर्फ बी। तो ऐसे भी एक सवाल उलझाने के लिए दे देता है। आप गौर करेंगे तो सही जवाब है तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, तो वही सिर्फ डी यानी ऑप्शन सही होगा। डी में लिखा हुआ है सिर्फ बी, तो इस तरीके से थोड़ा सा फंसा देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सिर्फ बी, यानी तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। सवाल नंबर 15 है, अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो वो अमल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वो बहुत सी ज़बानों में पढ़ सकता है, या फिर बी है वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन अपनी मादरी ज़बान में नहीं लिख सकता, या सी है पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है, या डी है पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान की आमोजिश में नहीं मुंतकिल कर सकता। तो नहीं का जुमला को तो आप बिल्कुल कट कर देंगे, डी बिल्कुल नहीं होगा। वो बहुत सी ज़बानों में पढ़ सकता है तो ये भी मुमकिन नहीं है। और बी को देखेंगे वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन अपनी मादरी ज़बान में नहीं लिख सकता, तो ये भी मुमकिन नहीं है, हो सकता भी है। लेकिन सी को देखेंगे कि पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है, ये सही जवाब होगा सवाल नंबर 15 का। यानी अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो क्या होगा, पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में वो मुंतकिल कर सकता है। तो ये रहा आज का कुल 15 सवाल जो आमोजिश और इक्तिसाब से था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। रब्ता के लिए हमारा नंबर, अगर कोई भी परेशानी दिक्कत आती है तो कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उर्दू के मुतालिक जो भी कुछ होगा, जहाँ कुछ भी जानकारी होगी तो आपको हम खबर करेंगे। हाँ, हरियाणा टेट का भी फॉर्म निकला हुआ, आप किसी को अगर भरना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको लिंक वगैरह सारी जानकारी दे सकता हूँ। TGT PGT और 1 से 5 ये तीनों लेवल का निकला हुआ है। 2 दिन और डेट बढ़ा गया है, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं।